स्टार्ट करते हैं डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो टुडे टॉपिक डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ trigonometric functions. Domain, range, and graph of trigonometric functions. Okay. So today are you joining me for a cup of tea, guys? So should we spend some time in a cup of tea and discuss the roadmap to how to achieve the rank 1 AIR 1? क्या कभी किसी ने तुमको इतना प्रिपेयर करते हो तो क्या तुमने कभी सोचा है कि रैंक 1 क्यों नहीं? क्यों हम सिर्फ क्वालिफाई करने को सोचते हैं? रैंक 1 के बारे में क्यों नहीं सोचते? रैंक 10 के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? अंडर 100 के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्या किसी ने सोचा है ऐसा कभी? या फिर एज नॉर्मल पीपल जस्ट स्टडिंग will appear the exam and then will qualify the exam? See, let me tell you, since right now already you are handling so many burden, okay, but thing is that if you messed up in so much burden, creativity will not come out. And the rank 100, these are got by the creativity. Okay, ये थी हम आज कप ऑफ टी में डिस्कस करेंगे. ओके, पढ़ाई कर लेते हैं. डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. So here what we need to do, see, first function is our sin x, fx equal to sin x. So first what we will do, we'll try to draw the graph of this sin x, and based on the graph we'll try to calculate the domain and range of these trigonometric functions. So for that purpose, in order to draw the trigonometric function, what you do means, in order to draw the graph of trigonometric functions, what you do, you just take a circle. You just take a circle like this. Okay, you just take a circle here. Here can I draw the circle better? Okay, here can I draw the circle? Okay, here I'm drawing a circle. Okay, so, and this is your x-axis and this is your y-axis. Okay, so now what you do, take any point after drawing this complete circle, take any point P, and this is the origin, this is your x-axis and this is your y-axis. Now suppose the code right now in each quadrant we are taking, right now in each quadrant the point we are taking, can you tell me? First quadrant. Now the coordinate of P will be what? X comma y, right? Now join this here. I told you, in trigonometry always you need to construct a triangle. Always you need to construct a triangle with the help of point P, origin, and any point on x-axis you can take. Now so suppose this is the perpendicular and the point is Q, and suppose this angle is theta, means first of all we will learn how the value of sin x vary. Okay, so OP is what? Can you tell me? If now just write here in triangle OPQ. In triangle OPQ, what is OP? The distance R, na? OP is what? Distance R. Now think like that. Now we'll calculate some standard angles like 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and then we will see how the angle varies. Means with the variation of angles multiple of 90, how the value of sin x varies. Okay. So first of all, write the definition of sin theta. So sin theta what? Perpendicular upon hypotenuse. Khushbu. Yes, sir. Where are you? I'm here, sir. So your problem resolved? Yes, sir. The test is open. All right, you can write the test in your free hours and you can submit. Okay, sir. The group, the link is given. Okay, so fx equal to sin x. Now sin theta will be what? Perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular means what? PQ, and then hypotenuse means what? OP. So PQ means what? PQ means y coordinate or x coordinate. Can you tell me? PQ means y or x r. Means PQ means what? You will take y or you will take x. Can you tell me? I told you now. X coordinate. Y coordinate means vertical distance. So here we will take y upon r. All right. So sin theta equal to what? Y upon r. Now start putting some angle. Like I will put theta equal to 0 degree. I will put theta equal to 90 degree. I will put theta equal to 180 degree. I will put theta equal to now 270 degree. I will put theta equal to 360 degree. And then we'll realize how the value of sin x varies. See, if I put theta equal to 0 degree, now just think here, when this angle will be 0 degree. If I put theta equal to 0 degree, point P should go where? Okay, suppose these points are like A, these points are like y coordinate B, this is C, and this is D. So if I'm asking you,
Just imagine theta equal to 0 degree. So if theta equal to 0 degree, here you'll get sine 0 degree, and think if in order to make this theta 0, P should be where? P should be at A or A at B. Can you tell me? In order to make this point A. A. Sir, A. A, so P should be at A. If P is at A, then what will be the length of PQ? Can you tell me? Everyone, I did Zero. everyone now. What will happen here? In order to make theta 0 degree, this point P should be, means this P will be coinciding with this point. So if P is coinciding with this point, then can we say that the length PQ is 0? Can we say like that? Yes, sir. Yes, sir. The length PQ is 0. So in length, if length PQ is equal to 0, then Y value is what? 0. So in that case, we can say that 0 upon R. R will remain same, R the radius of circle. So here it will become 0. Means that is also the proof of why sine 0 degree is taken as 0. Okay. Now, coming to sine 90 degree, just think like that. So sine 90 degree, P should be where? At B or at A? Just tell me. Sine 90 degree. P should be where? Can you tell me? P should be at point B. See, theta. B. Just think like B. that. Theta here, 90 degree, this P must move towards y-axis. So if P coincide with the point B, you'll get this 90. Am I right? You'll get this 90. So here you now get same thing. Now if P coincide with B, so can you say that the distance PQ, will be same as the distance OB? Can we say like that? Just think here. If P coincide with the point B, so can we say that distance PQ will be same as the distance OB? Na? Means situation is something like this. P is here. So see, if P will move, see, P is moving towards B. In order to get angle 90 degree. So Q will also move towards origin. Now Q will move towards origin. So P will coincide with the point B, and you can say that Q will coincide with the origin. So in that case, we can see here, this Y will become equal to R. So R upon R. Now you got 1. This is also the proof of Y sine 90 degree taken as 1. Any confusion here till now? Now think about 180 degree. When you will get 180 degree? Just tell me. Right now, this is your angle and P is here. So when this angle will become 180 degree? When P moving on this circle, when P coincide with the point C, means P coincide with the point C, this complete angle you will get 180 degree and P will be at your point C. Any confusion? Are you getting these things? Yes, sir. Yes, sir. In order to get angle 180 degree, the point P must coincide with C now. Okay. So again, if point P coincide with C, can we get this vertical distance? Can we get the y coordinate? Y coordinate will become 0. Y coordinate will become 0. So once again, 0 upon R, you will get 0. Okay. Now think about 270 degree. So here sine 270 degree will equal to what? See. So in order to get 270 degree, can you tell me P should come where? P should come at which point? In order to get an angle of 270 degree, means now we need this angle. Now what we need? We need this complete angle. This is the 270 degree, 90, 90, 90, 3 times 90. So we need 270 degree angle, means P must be on the negative y-axis. Did you get the point, everyone? P must be on the Yes. negative y-axis. So negative y-axis means what? Your y coordinate will become negative. Your y coordinate will become negative. So y coordinate y. What will happen here? Just imagine. P will coincide with the point G. So this total length will be R. But what will happen? Since P now reached in the negative y-axis, so I'll write here y equal to minus R. Y equal to what? Minus R. So here I'll write minus R upon hypotenuse same, you'll get here minus 1. So in that way you got sine 270 degree equal to minus 1. Now think of sine 360 degree. So how will you get 360 degree? So see, P was here. So this complete angle will be your 360 degree. Means once again P must come to the original position. Anyone have doubt here? In order to get the 360 degree angle, the point P must come at the actual position again. Means from where it started. So it started from 0 and again reached at the same position to make angle 360 degree. Again the value will be what? 0 upon R equal to 0.
Now, what will happen after 360? Can you tell me? Same thing will repeat now. After 360, same thing will repeat or not? Means once again, see, Yes, sir. angle will increase. Means after 360, next angle will be 360 plus 90, 360 plus 180. Means rotation changes. See, one complete rotation, 360 degree. Two complete rotation, twice of 360, 720 degree. So the particle is rotating like that. Its angle is continuously increasing, but its value will remain fixed. Means again it will give 0, 1, 0, -1, 0. Means these things will remain same. The value of sine will remain same, only angle will be increasing continuously. See, so can we say that after 360, the particle will repeat its entire value again? Can we say like that? After 360, this point P will repeat these values again. Can we say like that? And remember, Yes, sir. there is a term used periodicity. There is a term used periodicity. So what is the meaning of periodicity? If after a fixed time interval, if a particle repeat its value again, then that fixed time interval is called period of the particle or period of the whatever it may be. Period means what? After that particular time, same thing will be repeated. Same thing will be repeated. So that's why we call it period. So here we can say that the period of sin x function is 360 degree. Now, got the point here? Any confusion deciding period? Any confusion in this period, this term No, period? sir. See, suppose if I draw a graph like that, see, if I draw a graph like that, one graph is this, say 0 to 2, other graph is this 2 to 4, then the graph is your 6 to 8, and so on it's going on. If I ask what is the period of this particle, so just see, the graph in the 0 to 2 interval is same as the graph in 2 to 4, means after every 2 unit, the graph is same. So can we say that its period is 2 unit? Its period is what? 2 unit. Can we say like that? Got the point? So now let's एक्स एक्सिस के हिसाब से बताएंगे सर हम पीरियड कितना क्या है उसका क्या क्या एक्स एक्स एक्सिस के हिसाब से बताएंगे सर हम एक एक्सिस के हिसाब से बताना है, ठीक है, क्योंकि एक्स आपके हाथ में है ना, एक्स इंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर हैंड, तो एक्स को आप वेरी करा सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ साइन वेरी. सो द फर्स्ट थिंग इज द एक्स इन योर हैंड. सो एक्स एक्सिस के हिसाब से आपको पीरियड डिसाइड करना है. ये चलता चला जाएगा, इधर भी ऐसे जाएगा, ऐसे हो सकता है ये -2 हो जाएगा. सो जब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद पार्टिकल का सेम बिहेवियर रिपीट होता है, तो हम बोलते हैं उसको पीरियोडिक फंक्शन. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हर एक 360 के बाद एंगल तो बढ़ा, 0 से 360, फिर 360 से 720 हो गया, लेकिन पार्टिकल का जो बिहेवियर है ना, ये सेम रहेगा. वैल्यू आपको 0, 1, 0, -1, 0 ही करके मिलते रहेंगे. ये सब कुछ समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पीरियोडिसिटी का? कि किसी को डाउट भी है इसमें? यस सर, समझ में आ गया. अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. तो मैं यदि ग्राफ ड्रॉ करूँ, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये, अच्छा एक चीज और, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, एंगल को वी आर नॉट गोइंग टू यूज एंगल इन डिग्री, वी विल यूज एंगल इन रेडियन. So do you know how to convert degree into radian from your lower class? Yes, sir. If you don't know, then I will teach you. यस सर See, if theta in degree is given, then what you do, just multiply it by pi upon 180. Okay, see, so theta degree will be equal to pi theta into pi upon 180 radian. So that formula for the time being you can use, because there are some angle conversion lectures. So that I will teach you in regular classes in Akash class. The reason why, because these are of least weightage. There is no much weightage of these topics in JEE. So that's why I skipped that. I started from the core of trigonometry. So conversion I will tell you regular. That's not very fast. Suppose if I say, even you can learn here, convert 30 degree into radian. So it will be 30 into pi upon 180. How much you got here? You can pi see by pi upon 6 6. Radian, the symbol of radian you see here. Or don't write anything, that's also correct. If I ask 45 degree, how much radian? So 45 into pi upon 180, pi how by much you got here? Pi pi by by 4 4 radian. Don't write radian. Similar 90 degree. So 90 into pi upon 180, how much radian? It is pi by 2 Pi radian. by 2. Similarly here 180 degree. If I say how much? So 180 pi pi by 180, simply it is pi radian. 360 degree. So 360 degree equal to what? 360 into pi upon 180, it will be equal to what? 2 Pi radian. pi. Some more angle I can calculate here, 60 degree. So 60 degree what? 60 into pi upon I am 3. what? Pi by 3 radian. So these are some simple values you can remember.
270 degree. So 270 3 into pi by 2. pi upon 180, you can check here, 3 pi by 2 radian. So I can believe that now you can easily convert degree into radian. Am I right? So is there any problem in conversion the degree into radian? Because sir. in the graph you use all angle in degree only. So now going to the graphical part, here I can write, just draw the x-axis here, okay, and now draw the y-axis, and whatever the angle you got there, just mark those angle here. Now see, this is 0 degree, 0 degree. Now 90 degree I calculated. Now how much angle I calculated there? 0 degree, 90 degree means 1, 2, 3, 4, 5. So all I'll put in the radian only. Okay. So 0, 90 degree means what? Pi by 2 radian. 180 degree means pi radian. 270 degree means 3 pi by 2 radian. Then we got 360 degree means 2 pi radian. Now let's plot the graph. Now mark the points also. So at 0 degree, what are the value of sine? Can you tell me? At 0 degree, what are the value of sine 0 degree? It was 0. 0. Pi by 2, it was 1. Am I right? At pi by 2, it was 1. Yes, sir. At pi Yes, sir. again became 0. At 3 pi by 2, you got the value of sine h -1. -1. So 3 pi by 2, you got the value h -1, and 2 pi you got 0. Am I right here? Now what you do? Join all these graphs with curve. Means join everything this curve like this. See, this is the basic graph of sine in first interval 0 to 2 pi. I told you the period. See, I told you period 0 to 2 pi. Now, after drawing in 0 to 2 pi, next task is very easy. Now, what you can do here, you can take 0 to 2 pi now. So suppose if I say here, again take a length of 2 pi unit. So 0 to 2 pi, add again 2 pi. So how much interval will become? How much long the interval will become? 0 to 2 pi. See, 0 to 2 pi, again 0 to 2 pi. Okay, again rotated. So it will become 2 pi to 4 pi. Now, did you get the point here? 0 to 2 pi, again complete rotation. So 2 pi to 4 pi. Is the point clear to all of you? Tell me fast. Yes, sir. So again, you Yes, can draw this graph in 2 pi to 4 pi. So mark here 4 pi. In between that, so many points will come. See how to decide? You can write so many angles here. See this 2 pi. Now 2 pi plus, first you got 90 now. So now 2 pi plus 90 means 2 pi plus pi by 2. How much value there? Can you tell me? 2 5 pi by 2. 2. How much total? 5 pi by 2 means after 2 pi, the next angle will be 5 pi by 2 in multiple of 90. I'm asking. Next, what you do? See here, 3 pi. 2 pi by 2 pi plus pi by 2. Next, after 2 pi, you move here. So 2 pi plus pi, how much you'll get here? Can you tell me? 3 pi. 3 pi. Pi, and then again tell me 2 pi plus, see, 7 pi by 2. this 7 complete pi. 2 pi, then 2 pi plus this 3 pi by 2. So 2 pi plus this 3 pi by 2, how much? 7 pi by 2. So in that case, you can draw this angle as 7 pi by 2. And value will be same. Pi by 2 is 90 now. So here same value will comes up. Again, you can draw this graph like this, then like this, then coming to the 1. Here you'll get some -1. So here you'll get -1, then you'll get 2 pi, 4 pi. So you can repeat the graph again 4 pi to 6 pi, 6 pi to 8 pi. So you can repeat this graph. Now, I'm interested to draw this graph in the negative part also. So here take negative angles. What is the meaning of negative angle? Let me tell you. Here I'll explain. See, in the basic, I will tell you, if you are moving anti-clockwise sense, if you are moving anti-clockwise sense, then angles are positive. So these are what? Anti-clockwise sense. Now, if you rotate in clockwise sense, your angles will be negative. Okay, means clockwise sense means it will move in this direction. Just this is the standard rotation actually. If you rotate in clockwise, anti-clockwise, you take angle positive, and when you rotate in anti-clockwise, your angle is positive, and when you rotate in clockwise, your angles are negative. So here you got a positive angles. Now write some negative angles. So pi by 2, just write it minus pi by 2. Pi by 2, you can write now minus pi by 2. Here you can write now minus pi. Now you can write here minus 3 pi by 2. Now you can write here minus 2 pi. You can write here minus 5 pi by 2. Then you can write here minus 7 pi by 2. Okay, you can write here minus 2 pi also. Now how the value will change?
So don't worry about that. Yesterday, did I teach you about allied angles? Tell me. Yesterday, did I teach you about -4 पाई होगा ना वो. Yesterday, did I teach you about allied angles? Tell me. So in allied angles, did I tell you is sine of minus theta equal to minus sine theta? Just think like that. Did I tell you like that? Yes, Sine sir. of minus theta minus sine theta. See, I'm interested to find the value of minus pi by 2. So I can say that sine of minus pi by 2 will be equal to minus sine pi by 2. And sine pi by 2 you got the value 1. So minus 1. So what will happen? Whatever the value you got here means negative of entire this graph you will get here. So just mark the point C. Minus pi by 2 will get here minus 1. At pi you will get 0 because at pi the value of sine is 0. So here it's again 0. At minus 3 pi by 2, if I ask what is the value of sine minus 3 pi by 2, what you will do? Minus of sine 3 pi by 2. 1. And sine 3 pi by 2 you got here minus 1. 1. Remember these values are plus 1. Here it's minus 1. Again here plus 1. Then here minus 1. So here what will get? Minus of minus 1 you get 1. So here you will get the value 1. Then 2 pi 0. At minus 5 by 2 see. At 5 by 2 you are getting plus 1. So at minus 5 by 2 you will get minus 1. Minus 7 by 2. 3 pi I missed now here. 3 pi. I missed. Okay, don't need to worry about this. So right here now 3 pi. Then here write 7 pi by 2 and extend this portion and then write here minus of 4 pi. So 3 pi you are getting 0, so you'll get 0. Now 7 pi by 2 you are getting minus 1, so at minus 7 pi by 2 you'll get plus 1. At 4 pi you are getting 0, and now draw this complete thing with the curve. So now this graph you'll get in the negative side. So this is the what happening. This is the complete graph of sine in minus 4 pi to 4 pi. Any confusion? Any confusion till now in this graph? No, sir. No, No, sir. sir. So remember the max. See now, see that here now you can easily calculate the domain and range. You can see that just you see the graph and see what is the minimum value sine is taking. What is the minimum value sine is taking? Can you tell me? -1. Minus 1. What is the maximum value this sine is taking? +1. Means sine graph oscillates between -1 and +1 only. Okay. So now here I will make some important points. Just note it down. See the first point I'll write here. Important points about sine only. Now, if I ask about domain, what domain you can tell me? Just tell me fast. See, domain is what? Values of x. These are your x-axis and these are your y-axis. So x we can put any angle. No? Right now in x we can put anything here. So domain belongs to R. If I ask about range of sine x, what you will tell? Range belongs to what? -1 to 1. So you can also write -1 less than equal to sine x less than equal to 1. Here's some more point I'm interested to write. Suppose if I write here -1 less than equal to sine x less than equal to 1. Now if someone asks, okay, what is the range of this mod of sine x? What you will tell? See, modulus. Now I am putting modulus. So modulus of anything is positive or negative? Just tell me. Positive. Positive. So if -1 less than equal to sine x less than equal to 1. So what can we conclude? Can we say that, okay, see, if anything is less than 1, its magnitude also less than 1. Did you get the point? If anything is less than 1, then its magnitude also less than 1. Is it clear to everyone? So sin x less than equal to 1. So mod of sin x also less than equal to 1. But since modulus of x is positive, so you can start like this. 0 less than equal to mod of sin x less than equal to 1, you can say. Got the point? 0 less than equal to mod of sin x less than equal to 1, you can say. Did you get this? I will tell you how, don't worry. Yes. Suppose if I say, okay, what is this value like? Sin square x. What about sin square x? Where it will lie? See, if anything is less than 1, then what about its square? Suppose if I say x is less than 1, so x square also less than 1. Na? Do you get the point? So if sin x less than 1, its square also less than equal to 1. But if I'm doing a square, it means that it will be positive. A square can never be negative. So a square can be either positive or 0. So you can say that 0 less than equal to sin square x less than equal to 1. Let me write the point first, then I will tell some the graph of some different thing. Don't worry. So how much you got here? 4 points. Now let's talk about the 5th point. Now sin x equal to 0. Suppose if I'm writing here
sin x equal to 0, then what will happen? Just tell me. See, sin x equal to 0 means what are the points where sin x is becoming 0? See, 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi means these are the points. See here, sin x equal to 0. So x are what? It's 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. There are some negative angles also like that. See, at minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, this is minus 3 pi, minus 4 pi. So we can also write here not only pi but pi, minus 2 pi, minus 3 pi, and minus 4 pi. What conclusion can we draw? Can you tell me? So sin x equal to 0 implies that x equal to n pi. Can you write? Just tell me where n belongs to set of integers. See, if you put n equal to 0, you'll get x equal to 0. If you put n equal to 1, you'll get x equal to pi. Put n equal to 2, you'll get 2 pi. Put n equal to 3, you'll get 3 pi. Is this correct? Is it correct? Any confusion here? Yes, sir. Tell me. So when I put minus 1, you'll get minus pi. If put n equal to minus 2, you'll get minus 2 pi. So sin x equal to 0, this implies x equal to n pi. Now, sixth important thing is period of sin x. Period of sin x, I told you now, means you can just here 2 pi, means 360 degree. Because what you calculated here, 0 to 2 pi. So whatever is the graph between 0 to 2 pi, the same graph is repeating 0 to 2 pi to 4 pi. So after every 2 pi, the graph is being repeated. So we can say that here, period of sin x is now 2 pi. Okay. Now, suppose I'm asking question here, draw modulus of sin x, between 0 to 4 pi only. Okay. Modulus of sin x between 0 to 4 pi. Already I have told you transformation of graphs. Did I tell you now? Transformation of graph already discussed. So what to do here now? See the base function. What is base function here? Sin is the base. So first draw the graph of sin x now. Draw the graph of sin x. So draw the graph of sin x between 0 to 4 pi. See here. Just mark only 2 points. Pi, 2 pi, here 3 pi, and then here till it's something like 4 pi. Okay. So in 0 to 2 pi, the graph of sin x is this, and then the graph of sin x is this. So this is the complete graph of sin x in 0 to 4 pi. Now the question is, we have to draw mod of sin x. Then what to do? Can you remind me? What to do? What was the technique of taking modulus? Forgot? Sir, Anyone? negative Negative values sir, will be रिफ्लेक्शन ले लो सर एलिमिनेट करके रिफ्लेक्ट कर देंगे. Pi, 2 pi, then 3 pi, then 4 pi. What I told? The portion which are lying below the x-axis, just reflect it. Means 0 to 2 pi, okay, the portion below x-axis. Pi to 2 pi, the portion is below x-axis now, so just reflect it. So you get pi to 2 pi. 2 pi to 3 pi, okay, it's above x-axis, you'll get this. So now 3 pi to 4 pi, the portion is in the negative x-axis, sorry, below the x-axis, now reflected. So this is the graph of what? Mod of sin x. Now it's easily minimum value here 0, maximum value 1. So you can say that mod of sin x varies from 0 to 1, and already I have mentioned here also. See, mod of sin x from 0 to 1. In negative side, you can also draw. Any confusion in mod of sin x graph? Any confusion in mod of sin x graph? Tell me. no, sir. No sir. Now, Sir, try to draw the graph of this one. Y equal to sine of mod x first, and the second one is mod of y equal to sine x. It's homework. You will take the interval. I'm giving you the interval also. Minus 4 pi less than equal to x less than 4 pi. Means in this interval, you have to draw this graph of. Anyone want to do something? Anyone who asked something, please tell me. After I take some more questions now. Now we are aware about the sin x now. Now suppose the question asks y equal to sine square x minus 2 sine x plus 2. The question is find the range of this function. So now domain and range of trigonometric functions can start from here. Y equal to sine square x minus 2 sine x plus 2. The question is find the range of this function. Very easy. Now we know about sine x. We know that minus 1 less than equal to sine x less than equal to 1. Means about sine x we are well aware now. So how to find the range of this entire thing? So I can write here, see, sine square x now. So sine square x minus this 2 sine x, this plus 2 can be written as this y square x minus 2 sine x, this plus 2 can be written as plus 1, and here plus 1.
So from here to here, what can you write? Can you write here sin x minus 1 whole square plus 1? Tell me yes or no. Is the point clear to all of you? Is the point clear to all of you? See, a Yes, sir. square minus 2 plus 1. So sin x minus 1 whole square plus 1. Now, our main task is to evaluate about sin x minus 1 whole square. Sin x minus 1 whole square. So here you can do something. See, you know minus 1 less than equal to sin x less than equal to 1. Now minus 1 is there, so do minus 1. So minus 1 less than equal to sin x minus 1 less than equal to 1 minus 1. So now you can say here minus 2 less than equal to sin x minus 1 less than equal to 0. Now what will happen from here? That is interesting here. See, we have to perform a squaring. That is a very good technique here. Suppose if I say minus 2 less than equal to a less than equal to 0, or minus 2 less than equal to a, okay, minus 2 less than equal to a less than equal to 0. If I do a squaring, what will happen? See, a square will make everything positive now. If I perform a squaring, a square will make what? Everything positive. Am I clear or not? Yes, sir. So everything positive means minus 2 square will become 4 and 0 square will remain 0. So inequality will be what? Inequality will change or not? Inequality will change. It will become like this. So here once again, very easy technique. Let me tell you. If you are getting something like positive, now do a squaring. So 4 less than equal to a square less than equal to 9. It will work. Okay. But now if you are getting something like negative, like minus 2 less than equal to a less than equal to 0, and here into squaring, so inequality will change. Did I tell you? Remember one class I told you. Yes, sir. Now what will happen if one interval is negative and other is positive? Then what will happen? Just tell me. Can you say that, okay, to do a squaring, what will happen here? Minus 2 whole. What happened? Anyone asking something? Anyone asking something? Did you get these 2 points? These 2 points clear to you, all of you? 2 less than equal to a less than Yes, sir. Yes, sir. It's very simple now. If you do a squaring, 3 square will become 9 and 2 square will become 4. So which magnitude is greater? 9 is greater than 4, now inequality will not change. So minus 2 to 0. So minus 2 square means we get here 4, then 0 square will get 0. So of course magnitude of minus 2 square is much greater than 0 now. So inequality will change here. So here what will happen? Just tell me. Here interested in this question now, no? Forget it. Minus 2 less than equal to sin x minus 1 less than equal to 0. If we do a squaring, what will happen? 4 greater than equal to sin x minus 1 whole square greater than equal to 0. So 0 less than equal to sin x minus 1 whole square less than equal to 4. Now, here we need to do plus 1 also now. See, from here to here root, now do plus 1. So 0 plus 1 less than equal to sin x minus 1 whole square plus 1 less than equal to 4 plus 1. Means we can say that the range of y is 1, 5. Any confusion in this question? Please let me know. No, sir. Any? Sir. Tell me yes. Sir, so here how you took sin square x minus 2 sin x plus 1 upon sin x minus 1 whole square plus 1? See, squaring sin square x minus completing a square method, sin square x minus 2 sin x plus 1 plus 1. Plus 2 are there now. So 2 can be split in 2 parts, plus 1 and plus 1. Okay. So think that here I can write sin square x minus 2 into 1 into sin x, then plus 1, then plus 1. This thing can be written as, so a square minus 2ab, this 1 square acting as 1 square. So x square minus 2ab plus b square. So equal to sin square x minus 2 sin x plus 1. Na? So here what can you write? See, sin square x, write it sin x whole square. A small things you can need to do. Minus 2 sin x, right here 2 sin x, then 1. It was 2 na, so 2, 1 plus 1. So from here to here, what can you write? Just tell me. You can write now sin x minus 1 whole square plus 1. Is it correct or not? A square minus 2ab plus b square. Is it clear to you or not? Tell me. Akriti, you asked me na. Is it Yes, sir. clear to you how I wrote that? Yes, sir. Okay. हमको sin x minus 1 का whole square plus 1 चाहिए. ठीक है, देखो तुम लोगों को उतना भी नहीं समझ में आया ना, तो तुम यहाँ भी कर सकते हो. इसका इजी टेक्निक भी है.
साइन एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -1 से 1 वेरी करता है। आप यहीं पे कर लो, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को भी नहीं करने आता है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। यही क्वेश्चन था ना आपका, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये 2 साइन एक्स प्लस 2 था, यही था ना। आप इसको क्या करो, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख दो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है इस स्टेप में? इस स्टेप तक किसी को No, दिक्कत नहीं है? No, sir. अब देखो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, -1 से 1 वेरी करती है ना। आप क्या करो, Yes, sir. साइन एक्स का लोअर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो साइन एक्स का लोअर वैल्यू पुट करोगे तो -1 पुट करोगे, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या बनेगा, ये 5 बनेगा क्या? जस्ट टेल मी। फिर क्या करो आप लोग, साइन एक्स के यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पुट, सॉरी साइन एक्स का जो एक्सट्रीम वैल्यू है, तो साइन एक्स का एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, -1 एक 1 है, तो -1 पुट कर दिया 5 आ गया। 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया 1। इसका मतलब कि y की जो वैल्यू है वो 1 से 5 के बीच में ही लाई करेगी। तो आप लोग, बड़ा कौन है, 1 है कि 5 है? बड़ा कौन है, 1 है कि 5 है? तो आप इसको ऐसे करके लिखोगे 1,5। ठीक है, अंडरस्टूड इट? और भी कोई दिक्कत है Yes. तो आप इसको ऐसे भी लिख no, सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था साइन के बारे में। अब आते हैं सेकंड, y इक्वल टू कॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू कॉस के बारे में मतलब कॉस ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या करो, सेम लॉजिक लगाओ, एक सर्कल ड्रॉ कर लो ऐसे। ओके, नाउ टेक दिस एज एक y एक्सिस एंड दिस एज योर x एक्सिस। ये x है और ये y है। पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन से बाद में लेंगे क्योंकि ग्राफ के साथ क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लग जा रहा है। पहले सबका ग्राफ कंप्लीट करता हूँ इस बार। देखो मान लो यहाँ पर पॉइंट P है, तो पॉइंट P को आप क्या करो, ऐसे ज्वाइन कर दो। कोऑर्डिनेट ले लो x, y, कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल। सो P से क्या करो, यहाँ पर Q लगा दो, इसको एंगल थीटा ले लिया। सो नाउ इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ यदि मैं पूछूं कि साइन, मैं कॉस के बारे में इंटरेस्टेड हूं ना, यदि मैं पूछूं कि cos थीटा क्या होगा तो बताओ, तो cos थीटा क्या होगा? जस्ट टेल मी व्हाट इज cos Base. थीटा? Base upon hypotenuse. cos थीटा क्या होगा? Sir, OQ upon OQ upon OP. OP, Q upon मतलब OQ अपॉन OP मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो हाइपोटेनस का क्या करो, r लिख दो, ये रेडियस r लिख दो, सर्कल का रेडियस मान लो r है। अब आप इजीली कर सकते हो। यदि मैंने पूछा कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos यहाँ पे मैंने पूछा आपसे कि 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ग्राफ ड्रॉ करने कितना काफी है। आप सोचो कि एंगल 0 डिग्री कब बनेगा, जब ये पॉइंट P कहाँ पर आना चाहिए। एंगल ये थीटा 0 कब होगा, जब ये पॉइंट P, ये पॉइंट को आपने A मान लिया, इस पॉइंट को आपने B मान लिया, इस पॉइंट को C मान लिया, इस पॉइंट को आपने D मान लिया। तो पॉइंट P जब A पे रहेगा तभी तो थीटा 0 होगा। कैन यू थिंक लाइक दैट? जब ये पॉइंट P आपका A पे रहेगा तो थीटा 0 होगा। मतलब ये A और P दोनों क्या करने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। डू यू गेट द पॉइंट? A और P दोनों क्या करने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। तो A और P दोनों कोइंसाइड कर रहा है तो कह सकते हैं कि उस केस में जो x होगा उसका लेंथ r के बराबर होगा। कह सकते हैं क्या? जब P आपका यहाँ पर है तो PQ तो 0 हो गया ना, PQ क्या हो गया, 0 हो गया। डू यू गेट द पॉइंट? PQ 0 हो गया। देखो आपने क्या लिखा, OQ अपॉन OP। जब P आपका A पर आ गया, P आपका A पर आ गया तो Q भी तो वहीं पे कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब यदि P आपका A पर है तो Q कहाँ पर है, आपका इधर है। पॉइंट तो मूव कर रहा है, पॉइंट का काम क्या है, सर्कल पे मूव करते रहना, रिवॉल्विंग पॉइंट है। सो इन पॉइंट D at A, this Q will be also at A. In that case you can see OQ also equal to R. यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो, 0 डिग्री के लिए R अपॉन R तो 1 आ गया। तो ये प्रूफ भी है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 कैसे आती है। 90 डिग्री बारे में बात करो, बताओ तो अब 90 डिग्री में क्या क्या हो सकता है। 90 डिग्री में क्या क्या होगा, जस्ट टेल यू फास्ट। देखो 90 डिग्री में पॉइंट P कहाँ पर जाएगा, कह सकते हैं कि 90 डिग्री में पॉइंट P आपका कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, B पे रहेगा। तो P जो है आपका B पर है, मतलब P जो है B की तरफ बढ़ा तो Q कहाँ बढ़ा, ओरिजिन की तरफ। मतलब Q कहाँ आ गया, ओरिजिन की तरफ। तो क्या इस केस में ये बोल सकते हो कि जब पॉइंट P B पर आया मतलब कहाँ पर आ गया, Y एक्सिस पे चला आया। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यदि पॉइंट P आ गया तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0, sir. 0 होगा ना। तो क्या मैं इसको 0 अपॉन r लिख के 0 कर सकता हूँ। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है हमारा, 0 होता है। अब मैं cos 180 डिग्री के बारे में बात करूँ तो 180 डिग्री के लिए पॉइंट P को कहाँ आना चाहिए। 180 डिग्री के लिए पॉइंट P रोटेट करते 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 यहाँ पे चला आएगा।
मतलब जो पॉइंट सी है, पॉइंट पी जो है आपका यहाँ पे चला आएगा। इस केस में क्यू किधर वैरी करेगा, क्यू भी मूव करते करते यहाँ पे चला आएगा। मतलब कंप्लीटली एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, निगेटिव एक्सिस पे चला आया। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो क्यू कहाँ चला आया आपका, निगेटिव एक्सिस पे चला आया। इस केस में आप कहोगे कि ओ क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, और ये सॉरी माइनस एक्स नहीं कह सकते हैं आप बोल प्लस आर सकते हैं ओ क्यू की वैल्यू माइनस आर बोलेंगे क्योंकि निगेटिव एक्सिस में आ गया। तो यहाँ पर आपका ये माइनस आर अपॉन आर, ये आपका -1 बन गया। अब cos 270 डिग्री, तो 270 डिग्री मतलब क्या, ये पार्टिकल पॉइंट पी मूव करके यहाँ पे चला आएगा। हाँ बोलो। सर एक बार आपने बताया था कि आर हमेशा कोई से भी कोऑर्डिनेट पे लो तो आर पॉजिटिव ही होता है। आर थोड़ा नेगेटिव ले रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव ले रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स है ना। तो x है तो मान लो मैं x को माइनस आर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मान लो r तो पॉजिटिव है तो r2 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो मान लो -2 हो गया। तो ये हमने OQ नहीं लिखा, हमने एक्चुअली मैंने ये x कोऑर्डिनेट लिखा। ये क्या लिखा मैंने, x कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू -r लिखी गई है क्योंकि r तो पॉजिटिव ही है, बट x तो पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है ना। ऐसा कंफ्यूजन और भी किसी को है क्या? No, sir. ये हो सकता है कंफ्यूजन, डाउट जेन्युइन था कि r को मैंने बोला था कि हमेशा पॉजिटिव लिखना है, तो -r क्यों लिख रहा हूँ। एक्चुअली मैं x को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो x जब तक पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है प्लस x एक्सिस में, तो मैं उसको प्लस r लिखा, और x जब निगेटिव एक्सिस पे चला आया तो मैं मतलब निगेटिव क्वाड्रेंट में आ गया, x एक्सिस से निगेटिव क्वाड्रेंट में, तो मैं उसको -r करके लिखूंगा। अभी 270 डिग्री के लिए ये पॉइंट कहाँ पे चला आया, d पे चला आया क्या, चेक करो d। यदि पॉइंट p आपका d पर आ गया, Yes, sir. 1 सेकंड देखो q कहाँ पे चला गया होगा, ओरिजिन पे। मतलब कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 अपॉन r, ये आपका 0 आ गया। फिर 360 डिग्री चाहिए मेरे को, तो पॉइंट मूव करते 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 कहाँ चला आया, ए पे चला आया। मतलब जो वैल्यू पहले लिया था वापस उसी एंगल पर आ गया। 0 डिग्री से स्टार्ट किया था तो वापस आया वो 0 डिग्री पर ही, लेकिन एंगल बढ़ गया, 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू आपको r अपॉन r करके 1 ही मिल जाएगी। ये समझ में आ गया एंगल कैलकुलेशन सबको, एंगल Yes, sir. कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया। Yes, sir. On this now you can draw the graph of cos x। अच्छा यहाँ पर cos का पीरियड क्या कहा जा सकता है, what can be the period of cos x, can anyone tell me? यदि मैं पूछूं what is the period of cos x, then what you will tell me? See, started from 0 2 pi na, started 360 degree in the degree Sir, two. form, yeah. In the degree form you can say 360 degree, in the radian form you will say okay 2 pi, because it started from 0, again after complete rotation it came to same point but angle become 360, again it will come to same point after one more rotation, angle will become 720। so 2 pi 2 pi 2 pi का ये पूरा का पूरा गैप मिल रहा है, और हर एक 2 pi के बाद क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है। तो पीरियड इसका भी क्या हो गया 2 pi। तो पहले क्या करो आप 2 pi में इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो एक बार। So once you draw the graph in 2 pi, everything will become quite clear. सर वो तो हर ग्राफ में सर 2 पाई ही होगा ना, 360 डिग्री पे रिपीट करेगा। tan और cot को छोड़ के बाकी सब में 2 pi ही आएगा। हम देखेंगे कि tan और cot में ऐसा क्या होगा, tan और cot में क्यों छोड़ के। ओके सर। अच्छा एक बात और देख लो कि cos की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है। देखो मैक्सिमम 1 तक आ रहा है क्या, चेक इट, मैक्सिमम 1 ले रहा है, मिनिमम -1 ले रहा है। मतलब cos की जो वैल्यू है वंस अगेन वो -1 से 1 के बीच में ही है। जीरो भी, तो जीरो क्या होगा, वो तो -1 से 1 के बीच में ही आता है ना। ये पॉइंट क्लियर है कि cos की जो वैल्यू है वो भी -1 से 1 के बीच में है। बात सबको समझ में आया क्या, नहीं आया? Okay, Yes, sir. sir. तो क्या करो यहाँ पर, क्या करो ग्राफ को स्मूथली ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक 1 की लाइन ड्रॉ कर लो, और नीचे यहाँ पर क्या करो एक -1 की लाइन ड्रॉ करो, ताकि ग्राफ ड्रॉ करना ज्यादा कन्वीनियंट हो आपको। अब देखो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, देखो 0 डिग्री है, फिर एक क्या है आपके पास π/2, मतलब कहाँ तक ड्रॉ करूंगा मैं, 4 पाई तक ड्रॉ करूंगा। फिर ये आपका 0 डिग्री π/2, फिर ये 3 π/2 मिला, इसके बाद ये पाई मिला, और फिर ये 2 पाई मिला। चलो 2 पाई तक ड्रॉ कर लो पहले। 2 पाई तक ड्रॉ करने के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो π/2 पर वैल्यू क्या आ रहा है, कैन यू टेल मी, π/2 पर cos की वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर क्या आ रही है? हाँ बोलो। 3/2 पहले आएगा या पाई पहले आएगा सर? ग्राफ। अब π/2 पर देखो 0 डिग्री पे क्या आया वैल्यू, 0 डिग्री पे cos की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 0 डिग्री पे cos की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो थोड़ा पॉइंट्स मार्क कर लो, इसके बाद ये हो जाएगा आपका। 0 डिग्री पे cos की वैल्यू 1 आती है, π/2 पे क्या आया, 0 आया।
पाई पर क्या है आपका, ये -1, आप कह सकते हो कि ये +1 की लाइन है और ये -1 की लाइन है। 3π/2 पे 1 सेकेंड 0 आया और 2π पे क्या आ गया 1। चेक करो, ऐसा ही है ना कुछ। तो आप कॉस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कॉस का ग्राफ। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ cos x in 0 to 2π। एनीवन हैज कंफ्यूजन हियर? किसी को कंफ्यूजन है 0 to 2π में ग्राफ कैसा होगा? No, आप sir. देखो, No, तो sir. इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। तो बता चुका हूँ मैं, इसको एक्सटेंड करना ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। मतलब जो ग्राफ आपको 0 से 2π में मिला, वही ग्राफ अब अगले रोटेशन मिलेगा, 2π से 4π मिलेगा। वही ग्राफ 4π से आपको 6π में मिलेगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, देखो 2π। तो अगला एंगल क्या होगा? 90 90 ऐड करते जाओ। पाई/2 सर। 0 से 2π हो गया ना, 90 ऐड करो तो 2π प्लस π/2। तो 2π प्लस π/2 क्या हो जाएगा? ये आपका 5π/2 चला आया। फिर क्या करो, 2π प्लस पाई कर दो तो 3π चला आया। 3π. नाउ 2π प्लस 3π/2 आई थिंक ये 7π/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 4π, बस इतना ही करो। 4π. अब वैल्यूज देख लो कि वैल्यूज में क्या कुछ चेंजिंग आएगी। देखो, जो आपको π/2 पे मिल रहा है वही आपको 5π/2 पर मिलेगा। थिंक लाइक दिस। ये पूरा 90 था तो वापस 90 यहाँ पर हम कब आएंगे? 2π प्लस π/2, मतलब सेम वैल्यू पे आ जाएंगे, लेकिन एंगल क्या होगा आपका? 5π/2 होगा। तो फिर यहाँ पर 3π/2 क्या मिल रहा था? -1 मिल रहा था। फिर यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। आप इस पॉइंट को ऐसे क्या करो, आप ज्वाइन करो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ ऑफ cos x, y इक्वल टू cos x इन द इंटरवल 0 to 4π। अब इसको मैं निगेटिव साइड ले जाता हूँ। तो निगेटिव साइड में करना कुछ नहीं है। आप जो जो एंगल आपने निगेटिव साइड का मतलब क्या होगा कि पहले आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप क्या करोगे? क्लॉकवाइज मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे तो सारे एंगल आपके निगेटिव बनते जाएंगे। कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस क्या कर दो, जो आपने एंगल यहाँ मार्क किया है सेम एंगल को यहाँ मार्क कर दो। ये -π/2, फिर यहाँ पर ये हो गया ये -π, फिर ये आपका हो गया ये -3π/2, और फिर हो गया ये आपका -2π। नाउ यू गॉट हियर -5π/2, -5π/2, then you get here minus of 3π, then you'll get here minus of 7π/2, and then somewhere here you'll get minus of 2π। Now tell me, अब वैल्यू डिसाइड करना चाहिए। क्या हमने कल अलाइड एंगल में ऐसा कुछ पढ़ा था कि sin cos of -θ always equal to cos θ? Tell me yes or no। क्या हमने अलाइड एंगल में पढ़ा था क्या? cos of -θ always equal to cos Yes. θ, ठीक है। So can we say here cos of -π/2 equal to cos of π/2, और cos of π/2 पर आपका एंगल क्या आया है? जस्ट चेक इट। cos of π/2 पर आपका एंगल क्या आया है? 0 आया है, तो 0 हो जाएगा। 0. तो ये -π/2 पे एंगल क्या होगा? 0। नाउ थिंक cos of -π, अगेन cos π। सो एंगल विल व्हाट? cos π वैल्यू क्या है? -1 है ना, यहाँ -1 ही होगा, ये -1 दे दिया। cos of -3π/2 मतलब cos of -θ, you can write here cos of θ। तो cos 3π/2 की वैल्यू क्या आई थी आपकी? 0 आई थी, तो 0 ही हो गई। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप चेक कर लो, फिर -2π पे आपको 1 मिल जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, -3π पे -1 मिलेगा, फिर ये 0 होगा और फिर यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अब सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये आपका cos का ग्राफ मिल गया। -4π से 4π में आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लो ऐसे। एनीवन हैव डाउट इन दिस कंप्लीट ग्राफ? सर हाँ पूछो, तुमको तो डाउट ही रहेगा कुछ ना कुछ। बोलो। सर ये आप क्लॉकवाइज बताए ना सर, तो वो एंगल है वो नहीं समझा सर, मतलब कैसे ठीक बनेंगे है, वो? तो क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज घूमे ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो एंटी क्लॉकवाइज ध्यान में रखो। कहने का मतलब कि अभी आप लोग मैं पढ़ाऊंगा क्लासेज में, ये थोड़ा बेसिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बता दिया मैंने कि देखो जब आप ऐसे मूव करोगे तो एंगल को क्या रखोगे? पॉजिटिव, मतलब 90 डिग्री 120 ऐसे रखोगे। और जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल को रखोगे, देखो सपोज करो पार्टिकल ने ऐसे मूव किया तो इसका एंगल क्या लिखा जाएगा? +90 डिग्री, मतलब π/2। और जब पार्टिकल ने ऐसे मूव किया मतलब क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये एंगल -90 डिग्री और ये -π/2 लिखा जाएगा। तो पॉजिटिव वाला एंगल मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा, और नेगेटिव एंगल मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा। वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। वैल्यू बता चुका हूं आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, cos of -θ इक्वल टू cos θ अप्लाई कर लो। या फिर आप ये भी कंफ्यूज कर गए कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये भी छोड़ दो। आप बस ये सोचो कि जो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल प्लॉट किया है, सेम एंगल को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डालो। जो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल प्लॉट किया है ना,
उसी एंगल को फिर से क्या करो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डाल दो और वैल्यूज को लिख दो और ग्राफ को ज्वाइन कर दो। तो वैल्यूज लिखने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? यदि मैंने पूछा कि मेरे को मैंने पूछा कि cos ऑफ माइनस पाई चाहिए, अब भूल जाओ कि तुम्हारा क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज को भूल जाओ, सिंपली cos ऑफ माइनस पाई चाहिए। तो cos ऑफ माइनस पाई का मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? ये तो कल प्रूव किया था ना कि नहीं किया था ये चीज? देवांश, ओ देवांश, किया था यस सर, किया था सर। तो ये तो पता है। तो cos ऑफ माइनस पाई पूछा गया तो मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ पाई, और cos ऑफ पाई तो निकाल चुका हूँ ना, -1, तो वैल्यू क्या आ गया, -1। अब मैंने किसी ने पूछा कि cos ऑफ माइनस पाई बाई 6 के बारे में बताओ, भूल जाओ कि पॉजिटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भूल जाओ। cos ऑफ माइनस पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, cos ऑफ माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 6। अब cos पाई बाई 6 तो पता है ना आपको, वो 30 डिग्री आ जाएगा, कन्वर्ट किया था ना, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था ना, तो पाई बाई 180 से यस मल्टीप्लाई सर। किया था। तो क्या होता है ये, √3/2 होता है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भूल जाओ, यदि नेगेटिव एंगल मिलता है तो उसको इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर दो। एनी कंफ्यूजन इन द ग्राफ ऑफ cos x? नो सर। हाँ सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट आकृति आपको दिक्कत हुई क्या? नो सर, अभी तक तो नहीं हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ जैसे मैंने साइन कर लिखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, डोमेन बताओ तो क्या होगा cos x का, क्योंकि मैं 2 ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, बस उसके बाद मैं tan सेकंड डायरेक्टली ड्रॉ कर दूंगा, इतना मेहनत नहीं करूंगा। आप लोग समझ गए लॉजिक कैसे करते हैं। डोमेन क्या होगा जिस बताओ तो फटाफट, डोमेन क्या होगा इसका? 0 होगा डोमेन। किसने बोला ये 0? रियल सर। इंटायर रियल नंबर, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। एक्स की हर वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, तो डोमेन इंटायर रियल नंबर हो गया। रेंज क्या होगा इसका, कहाँ से कहाँ वेरी करें, चेक इट, -1 से 1, -1 से 1। तो -1 से 1। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो मैंने साइन में लिखा था वही चीज लिखूंगा यहाँ से। मुझे अच्छा, रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब हुआ क्या यहाँ पे, क्या हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं कि एक काम करो, इसको रेंज को हटा दो यहाँ से, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। मतलब ये हो गया ना कि -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ इसको लिख लो ऐसे। रेंज जो होगा आपका, क्योंकि मैं यहाँ पर मॉड वर्ड लगाने वाला हूँ थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पर मॉड लगा दूं तो सोचो, मॉड लगा दूंगा तो ये 0 से cos x में चला आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू मॉड cos x लेस देन 1 आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वही रहेगा। फिफ्थ पॉइंट में ये होगा, यदि मैंने तुम लोगों से पूछा कि cos x की वैल्यू 1 चाहिए मेरे को, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लोग बहुत आगे पढ़ाते हैं इक्वेशंस वगैरह में, लेकिन मैं तुम लोग को बताता हूँ यहाँ पे cos x इक्वल टू 1 चाहिए। तुम लोग देख के ग्राफ बताओ तो कि cos x 1 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कैन यू टेल मी? cos x 1 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, मैं किससे पूछना चाहता हूँ, मैं किससे पूछूं अभी? आप बताओ तो, अरशद आप बताओ cos x 1 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इस ग्राफ को देख के बताओ तो। अरशद, सर मैं बता, चलो तुम बताओ, सर यस सर। बताओ तो, अब तुम्हारा टाइम। सर 0 पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, और सर 4 पाई पे हो रहा है। तो आगे ये किससे ऑल्सो होगा, सर आगे ये -2 किससे पाई। होगा? सर 6 पाई पे हो जाएगा, चलो छोड़ो। निगेटिव साइड बताओ तो कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो 0 तो 0 ही है, एक -2 पे हो रहा है, इसके बाद कहाँ हो रहा है, ये -4 पाई पे हो रहा है, ये 4 पाई है, सॉरी भाई, ये -4 पाई, तो आगे कहाँ पे होगा ये -6 पाई। देख के क्या लग रहा है कि क्या इसको इवन मल्टीपल सर ऑफ पाई ऑल द कहा जा इवन सकता इंटीजर्स पे हो रहा है। है? इवन मल्टीपल देखो, दो 0 क्या है, 0 तो इवन ही है, तो 2 2 4 6 -2 -4 -6, क्या इसको इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहा जा सकता है, यस और नो? क्या इसको इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहा जा सकता है, प्लीज टेल मी। यस सर। तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि यदि cos x इक्वल टू 1 है, दिस इंप्लाई x इक्वल टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। देखो आपने z मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर, यदि आपने 0 पुट किया आपको 0 मिल गया, 1 पुट किया तो आपको 2 पाई मिल जाएगा, 2 पुट किया आपको 4 पाई मिल जाएगा, निगेटिव वैल्यू पुट करो, -1 पुट करो तो -2 पाई। ये क्लियर हो गया सबको? आप लोग आकृति ने बता दिया, बहुत अच्छा। बाकी लोग खुशबू आप बताना, cos x इक्वल टू मैंने -1 लिखा, तो x की वैल्यू में क्या क्या लिखूंगा बताओ? सर पाई 3 पाई गुड, एंड -पाई एंड -3 पाई। 3 पाई, अच्छा पाई 3 पाई। अगला पॉइंट क्या 5 पाई आ सकता है, जस्ट चेक इट। अगला Yes, पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 पाई चला आएगा। नेगेटिव साइड में ये -पाई, ये -3 पाई और ये -5 पाई। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि क्या यहाँ से x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखा जा सकता है, चेक इट। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखा जा सकता है क्या, यस और नो?
Yes, sir. तो ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। तो ये और पाई एन, एन कहाँ होगा, वो सेट ऑफ इंटीजर में ही होगा, सेट ऑफ इंटीजर में ही होगा। देखो आप पहला इंटीजर क्या करो, 0 पुट कर दो, तो 2n क्या हो गया, 0 पाई मिला। यदि पहला इंटीजर मैंने 0 पुट किया तो आपको पाई मिल गया, मैंने 1 पुट किया तो 2 + 1 3 पाई मिल गया, 2 पुट किया तो 5 पाई मिल गया। ये क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 6 पॉइंट तक क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स आने वाला है। 7th पॉइंट, अब मैंने पूछा कि cos x = 0, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारा का सारा है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली आता है कभी कभी। cos x = 0, नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन। cos x = 0 ग्राफ देख के बताओ तो कहाँ कहाँ मिल रहा है। हर्षदा आप बताओ, 3 हर्षदा यू टेल मी cos x = 0 कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखो एक तो π/2 पर मिला, 3π/2 पर मिला, 5π/2 पर मिला, 7π/2 पर मिला। तो लिख लो पहले cos x = 0, π/2 पार्थ, हे पार्थ बताओ कहाँ कहाँ मिला, पार्थ कहाँ चले गए आप। 3π/2 पर मिला, Odd multiples of pi by 2. 7π/2। आप निगेटिव साइड में देख लो, निगेटिव में क्या है, माइनस लग गया सब में, -π/2 -3π/2। आप ऐसे कर सकते हो डॉट डॉट, फिर ये -π/2 -3π/2 -5π/2 और सो ऑन। नाउ टेल मी, इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं। देख लग रहा है 1 3 5 7, तो क्या ऑड नंबर आ रहा है ये 1 3 5 7, तो क्या ये ऑड नंबर आ रहा है, जस्ट टेल मी। Yes, sir. Yes. तो ऑड नंबर को जनरल तरीका से कैसे लिखते हैं, 2n + 1 करके लिखते हैं क्या। Yes, sir. 2n + 1. सोच लो, देखो n बिलोंग टू z, तो आपने 0 पुट किया आपको 1 मिल गया, आपने 1 पुट किया आपको 3 मिल गया, 2 पुट किया तो 5 मिल गया। यहाँ पर ये 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 n बिलोंग्स टू z आ गया। पॉइंट नंबर 8, इसका पीरियड क्या लिखा जाएगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस। 2 pi. Sir, 2 pi. पीरियड इक्वल टू 2 pi, sir. तो इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो आप लोग जो एक में मान लो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि y = सर क्या करो आप mod of cos x ड्रॉ करो, y = mod of cos x 0 से 2 पाई में ड्रॉ करके दिखाओ। मैंने बोला था ना यदि आप लोग ट्रिमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेंगे ना तो कई सारे ग्राफ्स को आप लोग ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो पहले मैं बेस ग्राफ ड्रॉ करता हूँ 0, तो 0 से 2 पाई में ग्राफ क्या था, 0 से 2 पाई में π/2 था, यहाँ पाई था, ये 3π/2 था और ये 2 पाई था। तो ग्राफ कैसा आ रहा था, ऐसा कुछ आया था क्या, चेक करो तो ऐसा ही आया था ना cos x ग्राफ, यही था ना cos x, कुछ और था क्या। Yes. देखो 0 से 2 पाई, तो 0 पे 1 और 2 पाई पे 1, मतलब ये वाला पर्सन ले लिया। अब पूरे के पूरे फंक्शन में मॉड लगा दिया गया, मतलब अब मॉड ऑफ cos x पूछा गया, तो क्या करना होगा, तो ये निगेटिव वाला पार्ट है इसका हम क्या कर लेंगे, रिफ्लेक्शन देख लेंगे और उसको हटा देंगे। तो ये 0, ये फिर हो गया आपका π/2 और ये तो पाई रहने दो यहाँ पे, ये 3π/2 और यहाँ पर आपका ये हो गया 2 पाई। तो ग्राफ कैसा होगा, देखो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको ऐसे ही रखो, पॉजिटिव मतलब जो x एक्सिस के ऊपर है उसको ऐसे ही रखो, π/2 से 3π/2 में ये आप रिफ्लेक्शन ले लो ऐसे और फिर यहाँ पर इसको ऐसे कर दो। क्लियर है मॉड ऑफ cos x ग्राफ, मॉड ऑफ cos x क्लियर है सबको। Yes. Sir. कुछ होमवर्क ले लो तुम, ट्राई करना घर पे। पहला आपको दिया मैंने y = cos of mod x और दूसरा आपको दिया मैंने mod of y = cos x। आपको ड्रॉ करना है -4 पाई < x < 4 पाई में। तो 3 ग्राफ मैंने फिनिश कर दिया, 2 ग्राफ, तीसरा ग्राफ मिलता हूँ। देखो y = tan x, y = क्या हो गया tan x। अब इसको ड्रॉ करने के लिए मैं उतना मेहनत नहीं करूंगा जितना मैंने साइन और कॉस में किया, क्योंकि आपको पता है कि tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x / cos x लिख सकते हैं क्या, जस्ट टेल मी यस और नो। tan x को मैं sin x / cos x लिख सकता हूं। sir. तो इसमें आप Yes, उतना sir. मेहनत नहीं करना, इसमें आप डायरेक्टली आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। देखो आप क्या करो, यहाँ पे ये आप क्या करो, यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ कर लो, यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो कुछ छोटा मोटा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यदि डिनोमिनेटर 0 होता है, इससे पहले कि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं कुछ पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं, यदि डिनोमिनेटर 0 तो ये tan क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, जस्ट टेल मी। यदि आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो कह सकते हैं कि Yes, sir. समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, अनडिफाइन। मतलब cos जहां पे 0 होगा तहां पे tan भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइन होगा क्या, जस्ट टेल मी। तो यदि मैंने कहा कि x = π/2 मैंने लिया, तो x = π/2 पे देखो tan की वैल्यू क्या आ रही है, साइन तो 1 हो जाएगा और ये क्या होगा 0, तो क्या ये अनडिफाइन हो रहा है, जस्ट चेक इट यस और नो।
यदि मैंने x को पाई बाई 2 पुट किया तो tan क्या अनडिफाइन हो गया? अनडिफाइन मतलब सिर्फ प्लस ही नहीं होता, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी सिखाया था मैंने कि प्लस इन्फिनिटी कब लेना है और माइनस इन्फिनिटी कब लेना है। ये इंटायरली डिपेंड करता है इंटरवल पे। यदि इंटरवल कंप्लीटली नेगेटिव है तो आप 1/0 को माइनस इन्फिनिटी लेंगे, और यदि आपका इंटरवल कंप्लीटली पॉजिटिव है तो 1/0 को आप प्लस इन्फिनिटी लेंगे। क्या ऐसा कुछ बात बताया था मैंने? बताया था कि नहीं बताया था? भूल गया सब लोग। -2 लेस देन x लेस देन 0 इंटरवल नहीं थी सर। तो इंटरवल कंप्लीटली नेगेटिव है तो 1/0 को हम माइनस इन्फिनिटी लेंगे, और इंटरवल कंप्लीटली पॉजिटिव है तो उस केस में 1/0 को प्लस इन्फिनिटी लेंगे। देखो एक डिनोमिनेटर 0 हुआ तो tan क्या हो गया? अनडिफाइन होगा। यस और नो टेल मी। डिनोमिनेटर 0 हुआ तो tan अनडिफाइन Yes, हुआ। sir. अब डिनोमिनेटर Yes. कहाँ कहाँ 0 हो सकता है, बस यहाँ से गेस कर लो। डिनोमिनेटर मतलब cos x, cos x इन सारे पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा। मतलब cos x कहाँ पे 0 होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो tan कहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ये बात सबको समझ में आई? सबको समझ में आई क्या? Yes, sir. अब देखो Yes, मैंने sir. क्या किया, एक तो 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो tan x, देखो tan 0 की वैल्यू क्या हो गई? sin 0 अपॉन cos 0। sin 0, अब sin 0 कितना आता है? 0 आता है, और cos 0 1 आता है, तो 0 हो गया। इसका मतलब कि tan वहां पे 0 हो जाएगा जहां पर इसका न्यूमरेटर 0 हो रहा है। tan वहां पे 0 हो जाएगा जहां पर इसका न्यूमरेटर 0 हो रहा है। डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब साइन 0 हो रहा है, तो साइन कहाँ 0 होता है? याद है किसी को? साइन 0 कहाँ होता है? मल्टीपल्स ऑफ n पाई। मतलब 0 पाई। तो ग्राफ tan प्लॉट करने ज्यादा मेहनत नहीं है, बस क्या करो, एक्सिस ड्रॉ कर लो। देखो ये आपका x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, और ये x एक्सिस। बस कुछ पॉइंट्स को मार्क कर दो जहां पर ये 0 हो रहा है और अनडिफाइन हो रहा है, दैट्स इट। देखो 0 पर 0 हो जाएगा, फिर ये देखो पाई बाई 2 पर 0 होगा। इधर पॉइंट क्लियर? सॉरी पाई बाई 2 पे क्या होगा? अनडिफाइन होगा। फिर ये पाई बाई 2 पर क्या आता है? पाई आता है ना। देखो ये Yes. पाई होगा, मतलब पाई बाई 2 का इंटरवल लिख दो। व्हिच कॉलिंग 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब ऐसे कर लो। देखो ये 0 से स्टार्ट किया, पाई बाई 2, फिर पाई, 3 पाई बाई 2, फिर ये 2 पाई। अगला पॉइंट क्या होगा? कैन यू टेल मी? 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2 लिख देंगे। 5. फिर 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई लिख देंगे। 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा आगे? ये 7 पाई बाई 2 हो गया। चलो इतना ही तक रहने देते हैं फिलहाल। आप चाहो तो इसको आप आगे कर सकते हो, 4 पाई नो इश्यू। और अभी रोटेशन भूल जाओ कि क्लॉकवाइज करना है कि एंटी क्लॉकवाइज। बस सिंपल से याद रखो कि जो आपने काम किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उस सारे एंगल को मार्क कर दो एक बार नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना है इसे। देखो ये पाई बाई 2 था ना, तो आपका क्या होगा? देखो यहाँ माइनस पाई बाई 2 हुआ, फिर ये क्या होगा? ये माइनस पाई होगा, फिर ये माइनस 3 पाई बाई 2 हुआ, फिर ये माइनस 2 पाई हुआ, इसके बाद ये माइनस 5 पाई बाई 2 हो गया, फिर ये माइनस आपका क्या हो गया? ये 3 पाई हुआ, फिर ये माइनस 7 पाई बाई 2, और फिर ये आपका हो गया ये माइनस पाई। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है? अनडिफाइन हो रहा है क्या? मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या अनडिफाइन हो रहा है ना। तो अनडिफाइन पे क्या करो? एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, मतलब इस तरह की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो अनडिफाइन वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे अनडिफाइन था, फिर यहाँ पे अनडिफाइन था, फिर ये यहाँ पर अनडिफाइन था, ठीक है, फिर ये यहाँ पर अनडिफाइन था, यही था ना। इस तरह से फिर ये कहाँ पर अनडिफाइन था? निगेटिव पर अनडिफाइन हो जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पर अनडिफाइन हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर अनडिफाइन होगा, और फिर ये यहाँ पर अनडिफाइन। मतलब इन सारे पॉइंट्स पे ये आपका जो tan होगा क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन पॉइंट पे क्या करो? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। जहां पर कोई फंक्शन अनडिफाइन होता है वहां पर आराम से तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, रीजन थोड़ी देर पता चल जाएगा। 0 कहाँ पर होगा? पाई पर 0 पर होगा, 0 पाई पर होगा, 2 पाई पर होगा, 3 पाई पर होगा, 4 पाई पे होगा। इधर माइनस पाई पे 0, माइनस 2 पाई पे 0, माइनस 3 पाई पे 0, माइनस 4 पाई पे 0। और अब ग्राफ ड्रॉ कर दो। देखो तो 0 पर tan क्या रहेगा? 0 पर tan की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये स्टार्ट होगा यहाँ से, और फिर पाई बाई 2 पे या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। इधर पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ। देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है समझना, पाई बाई 2 पर प्लस इन्फिनिटी लो कि माइनस इन्फिनिटी लो, आप लोग डिसाइड कर सकते हो क्या, या मैं कर दूं? सी 0 से 5 बाई 2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? आप सोचो ना कि 0 से पाई बाई 2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्या ये फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है?
Yes sir. क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं? होते हैं sir. Yes. इसका मतलब कि tan भी पॉजिटिव होगा तो tan/2 का प्लस इन्फिनिटी लगेगा कि माइनस इन्फिनिटी? Plus. Plus ग्राफ infinity. इसका tan का ऐसे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगा। π/2 से पाई, अब π/2 से पाई कौन सा इंटरवल? π/2 से पाई कौन सा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 से पाई, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट है? देखो ये 0, ये π/2, ये पाई और ये आपका देखो 3π/2, ऐसे याद रखो। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 3π/2 से 2π ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तभी हमारे पास जो एंगल है वो π/2 से पाई है, तो π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव की नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, tan क्या होगा? नेगेटिव। तो अब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और ये पूरा का पूरा आपका 0 पे चला आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये ठीक ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये मैंने क्या किया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे जाएगा ये, यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे चला आएगा। अब बताओ पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? ये पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? थर्ड में tan क्या होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से ऐसे 2π तक जाएगा। अब देखो 2π से 5π/2, तो 2π से 5π/2 क्या वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया? चेक करो, मतलब 2π तक क्या हो गया? एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। 2π तक क्या होगा मेरा? एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। अब ये 2π से हम क्या करेंगे? 5π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ फिर से रिपीट हो जाएगा। टाइम कम होता है ना, हम भी जल्दी अभी खत्म होने वाला, चाहता हूँ फिनिश कर दो, अगले में ड्रॉ करना पड़ेगा। 5π/2 से 3π, सो देखो यहाँ तक पहुंच गया 5π/2 और ये आपका हो गया 3π सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला पोर्शन रिपीट कर दो, देखो ये और फिर आपका ये 3π/2 से 7π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये ऐसे हो गया। कितना टाइम बचा है? 1 मिनट से कम बच गया क्या? ठीक है, इसको ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। नेगेटिव साइड में ये ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे और ये फिर ऐसे हो जाएगा, इधर भी ये ग्राफ ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। बस ये लास्ट, इससे पहले कि ये बोर्ड खत्म ही हो गया क्या? आप लोग एक लास्ट पॉइंट बता दो। जो ग्राफ देखो यहाँ पर, जो ग्राफ -π/2 से π/2 में है, क्या वैसा ही ग्राफ π/2 से 3π/2 में है? जल्दी बताओ, टाइम खत्म होने वाला है। -π/2 से Yes sir. तो क्लियर से क्या कहा जाएगा? देखो यहाँ तक का लेंथ π/2 और यहाँ तक का लेंथ π/2, तो π/2 प्लस π/2 टोटल लेंथ कितना होगा? पाई हुआ क्या? यस और नो? अरे 0 से π/2, यस सर। ये पाई था और ये 3π/2 था, ये 0 था और ये क्या था आपका? -π/2 था। बस एक दो पोर्शन ड्रॉ करूंगा, दैट्स इट। तो एक पोर्शन आ गया था, ऐसे आ गया था tan का, इधर ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों होगा, ताकि तुम लोगों को मैं जल्दीबाजी में लिख दिया था वो ज्यादा दिक्कत ना करे। सी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों होगा? सोचो, ये है 0 0, ये है π/2। आप ऐसे सोचो ना, बार बार रोटेशन से जो कंफ्यूज कर जा रहा है ना, तो रोटेशन छोड़ दो अभी। ये देखो, ये 0 से -π/2, क्या ये नेगेटिव हो गया? 0 से -π/2 तो ये नेगेटिव हो गया। तो tan ऑफ माइनस थीटा, कल मैंने क्या पढ़ा था, किसी को याद है क्या? tan ऑफ माइनस थीटा मैंने क्या Sir, पढ़ा? minus tan theta. सोचो -10. कि यदि यहाँ पर एक एंगल है, चलो मैंने क्या किया, यहाँ पर π/4 ले लिया। यदि मेरा tan π/4 मतलब कितना? 45 डिग्री ना। यदि tan π/4 1 होता है तो tan ऑफ -π/4 क्या होगा? माइनस ऑफ tan π/4, मतलब माइनस ऑफ 1 हो गया। गॉट द पॉइंट? तो π/4 पे यदि वैल्यू आपकी 1 आती है तो यही वैल्यू -π/4 पे क्या हो जाएगी? -1। जस्ट उसका उल्टा कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा आप लोग घर पे स्टडी कर लेना, क्लियर हो जाएगा। चलो पीरियड की बातें करते हैं और अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखना था बता दो मैं आप लोगों को फटाफट इसमें। ठीक है, देखो हट गया एक्सिस पूरा, छोड़ो इसको। देख बताओ, देखो अब ये देखो मैं क्या बता रहा था वहां पे कि 0 से π/2, तो इस इंटरवल का लेंथ कितना है? टोटल लेंथ ये कह सकते हैं कि टोटल लेंथ ये π/2 है,
बस लेंथ की बात करता हूं मैं। और यहाँ पे देखो 0 से -π/2, यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है, लेंथ π/2 ही है ना। अब यहाँ से आएगा तो इस ग्राफ, ये देखो कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ एक्सपेंड कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं कि इस ग्राफ का जो पूरा का पूरा लेंथ है वो क्या है, पाई है। इधर का π/2, इधर का π/2 पाई है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से पाई से π/2 तक का लेंथ क्या है, π/2 है, और ये लेंथ क्या है, फिर से π/2। तो क्या ये टोटल लेंथ तुम्हारा पाई आ गया, जस्ट चेक इट। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, हर एक पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो इस केस में इसका पीरियड क्या कहा जा सकता है, यही बता दो फटाफट। पाई की 2 पाई, इसका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। पॉइंट, इसका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। डोमेन बताओ तो फटाफट क्या होगा, tan x का डोमेन। ग्राफ किसका है ये, tan। सर रियल माइनस जहाँ पे 0 होता है, अब तुम लोग देख लो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे अनडिफाइंड होता है, सॉरी इन्फिनिटी सर, जहाँ पे जहाँ पे अनडिफाइंड 0 होता है। आप ऐसे ही सोच सकते हो कि tan x क्या था यहाँ पे, sin x अपॉन cos x। अब cos x कहाँ पे 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 होता है, ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो क्या लिखोगे, डोमेन बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। दूसरा पॉइंट, tan x का डोमेन, tan x का रेंज क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी, रेंज क्या होगा tan x का। देखो इतने इंटायर रियल नंबर हो जाएगा रेंज ना, इस पर टेंशन वाली क्या बात है। देखो ये नीचे, ये ग्राफ नीचे कहाँ तक जा सकता है, -∞ तक, और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, +∞ तक। ये क्लियर हुआ सबको, ये ग्राफ नीचे -∞ तक, ऊपर +∞ तक। तो आप रेंज बोल सकते हो यहाँ पे आराम से, रेंज बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर। इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो, -∞ 0 लेस देन tan x लेस देन ∞। लेकिन यहीं पे अब मैं मॉड लगा दिया, तो मॉड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 0 से हो जाएगा स्टार्ट ऐसे। तो 0 लेस देन इक्वल टू मॉड tan x लेस देन ∞। फोर्थ पॉइंट क्या करो आप, इसमें क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग भी करोगे तो यही रहेगा, 0 लेस देन इक्वल टू tan x स्क्वायर लेस देन ∞। ये फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, tan x इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आना चाहिए, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। tan x 0 कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 हो। tan x 0 कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 हो। यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में क्या है, साइन है, न्यूमरेटर में क्या है, साइन है, क्या साइन है कि नहीं बताओ। यस सर, तो साइन Yes, 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, n पाई पे। तो यहाँ n पाई। आंसर आ गया आपका n पाई ही आएगा। नाउ 6 पॉइंट, tan x ये अनडिफाइंड कब होगा, अनडिफाइंड कब होगा, और इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, छोड़ दो, ऑलरेडी यहाँ पर आप लिख चुके हो कि tan x अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, आप सब्ट्रैक्ट कर चुके हो। होल मल्टीपल पाई। तो ओनली यहाँ पर हम 5 पॉइंट ही लिखेंगे। अब मान लो किसी ने पूछा मेरे से, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, ग्राफ ड्राइंग, y इक्वल टू मॉड ऑफ tan x मेरे को ड्रॉ करना है, मॉड ऑफ tan x आई वांट टू ड्रॉ। इंटरवल ले लिया मैंने यहाँ से -π/2 से 3π/2 का इंटरवल ले लेता हूँ, -π/2 से -π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2 का इंटरवल एक ड्रॉ करता हूँ। सो -π/2 से पहले आप क्या करो, tan का ड्रॉ कर लो। तो यहाँ देखो ये आपका, ये था -π/2, और ये था π/2, ये था पाई, और ये था आपका 3π/2। तो इसमें आपने tan कैसे ड्रॉ किया था, tan कैसे ड्रॉ किया था आपने, इधर वाला पोर्शन ये, और ये वाला ये आ गया था, और यहाँ पे ऐसे बताओ तो मॉड tan x कैसा होगा, मॉड tan x कैसा होगा, टेल मी। तो मॉड में क्या करना होगा, देखो यदि मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यदि मेरे को मॉड tan x ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, इस निगेटिव वाले पोर्शन को हटा दूंगा, मतलब पहले रिफ्लेक्शन ले लूंगा और बाद में उसको हटा दूंगा। तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये वाला पोर्शन ऐसा दिखेगा, और ये वाला पोर्शन ऐसा दिखेगा, और ये फिर पोर्शन क्या करेंगे, हटा देंगे। आ गया समझ में, ग्राफ समझ में आ गया। तो आप लोग कुछ यहाँ पे ट्राई करेंगे, y इक्वल टू tan ऑफ मॉड x ड्रॉ करना, एंड सेकेंड मॉड ऑफ y इक्वल टू भी tan x ड्रॉ करना। ये भी 3 चीज ड्रॉ करो, फिर बताता हूँ मैं आगे कैसे क्या करना है। सो शुड वी एंड द क्लास टुडे, क्योंकि 3 ही ग्राफ हो पाया, बाकी 3 बचा हुआ है, तो अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। यू वांट समथिंग मोर डोज, एंड कर दें। सर ये तो काफी इजी क्वेश्चंस थे सर, इसमें टफ कैसे आएंगे, मतलब सर जैसे एडवांस लेवल के कैसे आ सकते हैं किसमें, सर, इसी में sin x और tan x cos x के ग्राफ से। आ सकते, बहुत आ सकते हैं। देखो ये आप, चलो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैंने पूछा कि f(x) इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x
कॉमा cos x कॉमा 1/2। ये होमवर्क दिया मैंने, आप लोग ट्राई करो इसको। if x equal to maximum of sin x कॉमा cos x कॉमा 1/2 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, चलो 2 पाई ले लेते हैं। तो इस इंटरवल में आपको इसको मैक्सिमम को ड्रॉ करना है। कह रहा है कि पॉइंट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सिर्फ ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो ठीक है, अब आप लोग नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या कुछ बताया था कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ से कैसे देखेंगे, कुछ सिखाया था मैंने, याद करो। सर पॉइंट जो एक्स Yes, sir. ये कॉर्नर पॉइंट, ये क्या करें कॉर्नर पॉइंट। चलो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करोगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करो आराम से। इंटरवल क्या दिया है, 0 से 2 पाई, ठीक है। तो मार्क कर दो, ये 0 होगा, 0 तो यहाँ पर होगा, 0 ले लिया, इसको मैंने π/2 कर दिया, इसको पाई कर दिया, फिर ये 3π/2 कर दिया, और इसको मैंने क्या किया, फिर 2 पाई कर दिया। मैं क्या करता हूँ कि 0 से 2 पाई में पहले साइन को ड्रॉ करता हूँ। तो साइन ऐसे आएगा, फिर पाई पे साइन क्या होगा, 0 होगा, फिर ये ऐसे आएगा, और 2 पाई पे क्या होगा, 0 होगा। अब 0 से 2 पाई में कॉस को ड्रॉ करता हूँ। ये 1 से स्टार्ट होगा कॉस, तो कॉस जो होगा आपका ऐसे होगा, पाई पे क्या होगा कॉस -1, 3π/2 पे कॉस 0, और 2 पाई पे फिर क्या होगा कॉस 1 हो जाएगा। कॉस और साइन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किए। अब बता सकते हो तुम लोग कि कॉस और साइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कि इस पॉइंट पे कॉस और साइन दोनों बराबर हो गया, ये हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कि इस पॉइंट पे कॉस और साइन दोनों बराबर हो गए। तो तुम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि कॉस और साइन की वैल्यू इक्वल कब होती है, किस एंगल पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, 45। मतलब ये जो 45 होगा, ये हो ना हो, ये वैल्यू आपका आया ये 45 डिग्री मतलब π/4 रहा होगा। और वैल्यू कितनी आती है, कुछ याद आया तुम लोगों को, ये वैल्यू कितनी 1/√2 7/√2. यहाँ पर पूछा है 1/2, मतलब हमको 3 ग्राफ ड्रॉ करना है, साइन एक्स भी ड्रॉ करना है, कॉस एक्स भी ड्रॉ करना है, और 1/2 भी ड्रॉ करना है। तो 1/2 बड़ा कि 1/√2 बड़ा, 1/√2 बड़ा। 7/√2 बड़ा. डिनोमिनेटर जितना कम होगा वैल्यू उतनी बढ़ेगी। तो 1/2 और 1/2, तो इसका डिनोमिनेटर कम है, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो यदि मैं 1/2 की लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो मेरी 1/2 की लाइन कहां से पास करेगी, इस पॉइंट के ऊपर से, किस पॉइंट के नीचे से, सर नीचे से। नीचे से। लाइन आपकी यहाँ से पास कर जाएगी, ठीक है। अब आपको बेटा सेलेक्ट करना है मैक्सिमम। तो क्या ट्रिक बताया था मैंने, मैक्सिमम सिलेक्शन का मैंने क्या ट्रिक बताया था, आप क्या करना है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करते जाना है। आप देखिए अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बताइए कि कौन सा पोर्शन आपके इस डेफिनेशन में आ रहा है। मान लो मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखता हूं, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर सबसे ऊपर ये ग्राफ है, मतलब ये पॉइंट हमारा सेलेक्ट होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट के ऊपर चेक करो, इस पॉइंट के ऊपर रेड वाला कर्व है, तो रेड वाला सेलेक्ट होगा। यहां पर आ गए, तो इसके बाद कौन सा पॉइंट, लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ये आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पर आपका ये ब्लू लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। बन गया ग्राफ कंप्लीट। टेल मी, क्या ये ग्राफ कंप्लीट बन गया, बन गया ना ग्राफ कंप्लीट। Yes, sir. यस सर। अब बताओ तो, देखो 0 से 2 पाई में डिफरेंशिएबिलिटी कांसेप्ट क्या होता है कि एंड पॉइंट को छोड़ के बताया जाता है, क्योंकि एंड पॉइंट पे हमेशा फंक्शन जो होता है नॉन डिफरेंशिएबल ही होता है। तो एंड पॉइंट को छोड़ के बताओ कितने कॉर्नर पॉइंट बने, कितने कॉर्नर पॉइंट बने। अरे ये तो कॉर्नर होगा, Sir, 2, 3 3. ये कॉर्नर, 3, sir. 3. एक कॉर्नर पॉइंट तुम्हारा ये है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। 3. आंसर दिस क्वेश्चंस नाउ। तभी तो शुरुआती है। Sir, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन था. एग्जैक्टली ये आ चुका है, ये आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये तो मैंने समझा दिया सर था ये आपको, तो काफी इजी था. ये बेटा हाँ यस सर, ये तो इजी था। ये मैंने आपको इस बता दिया। तो देखो क्वेश्चंस कैसा थोड़ा होता है, क्वेश्चन मतलब हमेशा टफ ही आते हैं। आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी बन जाएगा आपसे। तो ये एडवांस लेवल का था, लेकिन ये कम मार्क्स का था। आई थिंक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तभी तो मैंने आप लोगों को 3 ग्राफ बताया, अभी 3 और बाकी है। तो क्वेश्चन अभी आइडेंटिटी से थोड़ा क्वेश्चन टफ बन सकते थे, अभी तो पूरा ग्राफ एक बार क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब कंपाउंड एंगल होगा तो वहां से आपको फिर क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट। सर आप फिजिक्स में वेक्टर्स से नहीं स्टार्ट करेंगे सर, अभी हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे ही
किए हैं आकाश में। मोशन है, आप कुछ क्वेश्चन कर 1 मिनट इससे पहले कि आप लोग ये ट्राई करना, आप लोग फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन दे रखा है कि sin थीटा इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, ऐसा दे रखा है। कर रहा है कि सो दैट ये प्रूव करना है इट इज इम्पॉसिबल, मतलब बताना है कि पॉसिबल ही नहीं है, बस आप लोग बताना है कि पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा हम नहीं लिख सकते। एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस, अब यहाँ पर ये होमवर्क तो है लेकिन आप लोगों को कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको सबमिट करना ही करना है, आप लोग आराम से अपने फ्री टाइम में करें, क्योंकि इस चैप्टर का कोई प्रेशर नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग आराम से अपने फ्री टाइम में करेंगे। कह रहा है कि दिस इक्वल टू 0 है, देन जितना मैंने पढ़ाया उसके आधार पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा 1 सॉरी cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ऑप्शन है 3 -3, ये -1 और डी में है -2, यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो डी दे रखा है, तो ट्राई करेंगे। अच्छा नॉट पॉसिबल लिखा है यहाँ पे, देन वेट, देन एक सेकंड इसको ऐसे कर लेते हैं, नॉट पॉसिबल, देन this can not have a value equal to, मतलब इसका कौन सा वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं बताना, ऑप्शन इसका डी है, ये बताना है। एक लास्ट लिख लो आप लोग, इसका रेंज फाइंड करना है इस क्वेश्चन का, fx इक्वल टू रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस 9, इसका रेंज फाइंड करना है। तो इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको सबमिट करना है, फाइंड रेंज अपना ट्राई करना, हो गया तो ठीक है, वरना हम मिलेंगे तो करेंगे जरूर इसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। 3 ग्राफ बच गए, मुझे लगा कि कवर कर लूंगा लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि साइन और कॉस ज्यादा टाइम लग गया, बाकी 10 तो जल्दी